Assalamu alaikum everyone. Let's continue with the paper. October, November 2021, variance 12. Question number 1. In a titration, 25 cm cube of aqueous sodium hydroxide is transferred into the conical flask. तो अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफर कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली इस वॉल्यूम को ट्रांसफर करने के लिए मैं पिपेट यूज करूंगा. A few drops of indicator are added. Dilute hydrochloric acid is then added to the flask until the end point is reached. अगर मैं dilute hydrochloric acid को flask में ऐड कर रहा हूँ तो obviously वो burette से ऐड हुआ होगा. तो कह रहे हैं आपसे which pieces of apparatus are used to measure the volume in this experiment. तो obviously hydrochloric acid must be in the burette, whereas sodium hydroxide is found in the conical flask, and that volume should be placed via pipette, and therefore B is going to be the right answer. I hope it makes sense to you. Question number 2. A student follows the rate of reaction between marble chips and hydrochloric acid. Which diagram show apparatus that with a stopwatch is suitable for this experiment? तो आप जानते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट में हम गैस का कलेक्शन करेंगे मेजरिंग सिलेंडर में एट डिफरेंट टाइम इंटरवल्स, तो उसके लिए स्टॉपवॉच यूज हो जाएगी, राइट? तो कलेक्शन ऑफ गैस इज पॉसिबल बाय स्टॉपवॉच एट रेगुलर टाइम इंटरवल और डिफरेंट टाइम इंटरवल्स. सेकंड थिंग, लॉस इन मास ऑफ कंटेंट जो है एट डिफरेंट टाइम इंटरवल आप स्टॉपवॉच के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हो. तो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट. लेकिन थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज टाइट्रेशन में हम कभी भी स्टॉपवॉच यूज नहीं करते, एंड देयरफॉर 1 and 2 is the right option, and therefore B is going to be the right answer. All right. Question number 3. Pure oxygen is needed by many industries. How is pure oxygen obtained in large amount for such use? Oxygen is found in air, और एयर की हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं. तो अगर मुझे ह्यूज अमाउंट ऑफ प्योर ऑक्सीजन चाहिए तो जाहिर सी बात है मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ लिक्विड एयर करूंगा, एंड देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. An impure sample of compound X has a melting point of 120 degree. Make sure ध्यान से सुने, ये impure sample है compound X का जिसका melting point 120 degree है. तो impure substances lowers the melting point. ठीक है, ये याद रखिएगा. Impure substances जो है वो melting point को lower करते हैं. इसका मतलब जो compound X का melting point है वो 120 से ज्यादा होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि ये तो impure का है. X is purified and its melting point is measured again. Which is correct. इसमें एक चीज और भी ध्यान में रखिएगा, अगर मेल्ट कर रहा हूं सॉलिड्स usually melts, usually undergoes melting process. ठीक है, अगर मेल्टिंग हो रहा है तो इसका मतलब जो कंपाउंड एक्स है वो सॉलिड है, एंड क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड फॉर सॉलिड्स कंपाउंड. Crystallization is used for solid substances. Liquid distillation is used for liquid substances. Distillation is used for liquid substances. राइट? तो जाहिर सी बात है मेल्टिंग पॉइंट 120 से ज्यादा होना चाहिए बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट प्योरिफाइड फॉर्म. तो मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर ज्यादा है, सी में ज्यादा है, या तो आंसर डी है या फिर आंसर सी है. एंड सिंस मेल्टिंग हो रही है सॉलिड्स में होगा तो सॉलिड्स के लिए प्योरीफाई करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन लेते हैं. तो आई बिलीव सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. Question number 5.
when aqueous sodium hydroxide is added to aqueous compound X, red brown precipitate is formed. ये जो red brown precipitates हैं ये obviously iron 3 ions को represent करेंगे. Next, when dilute nitric acid is added followed by aqueous barium nitrate is added, aqueous compound X white precipitate is formed. तो जब आप barium nitrate ऐड करते हैं और आपको white precipitates मिलते हैं, then it means sulfate ions is present. That means आपके पास iron 3 ions available है और आपके पास sulfate ions present हैं, दोनों आपस में combine होंगे तो iron 3 sulfate form कर लेंगे. तो D is going to be the right answer. Question number 5. An aqueous solution of zinc chloride is tested by adding reagents. Which observation is correct? ये हमने कल भी variance 11 में काम करवाया था आपको. तो zinc ions को टेस्ट करने के लिए हम barium nitrate कभी भी यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया. राइट. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. aqueous ammonia forms a white precipitate soluble in excess reagent. This might be the right answer because zinc जो होता है वो excess aqueous ammonia में dissolve होकर colorless solution देता है. So this might be the right answer, but हम C को भी देख लेते हैं. aqueous sodium hydroxide जब ऐड करते हैं zinc chloride में तो zinc के white precipitate बनेंगे लेकिन वो soluble होते हैं in excess aqueous NaOH. तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया. पाउडर्ड कॉपर को हम कभी भी यूज नहीं करते जिंक को टेस्ट करने के लिए, तो ये भी गलत. तो राइट ऑप्शन इज गोइंग टू बी बी ऑब्वियसली. ठीक है. Question number 7. A sample of gas is released at a particular point in a laboratory. Detecting device is placed 10 meters from the point where the gas is released. This device detects and records the time when the concentration of the gas is 10 molecules in every million molecules of air. The experiment is carried out with two gases at different temperature. Guys, different temperature है. तो जाहिर सी बात है gases का different rate of reaction भी होगा. Different rate of reaction, right? फिर वो कह रहे हैं in which experiment was the time recorded by the detector greatest. Okay, सबसे important बात time recorded by the detector greatest. Time recorded greatest उस वक्त आएगा जब higher MR होगा और lower temperature होगा. And lower temperature decreases the rate of reaction. The rate of diffusion. So higher MR जो है वो A में है, B में है और higher temp और lower temperature जो है वो A में है. तो right answer is A. अब यहाँ और भी लिख सकते हैं because kinetic energy decreases, so movement of particle decreases. All right. Question number 8. The table shows the data for some particles. Sodium ion का proton number 11 है. Number of protons 11 है. तो number of electrons 10 है. ठीक है. तो न्यूट्रॉन्स मालूम करने 23 और 11 दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना आ जाएंगे 12. तो W का आंसर जो है वो 12 होगा और वो 12 C में है और D में है. वाई देखते हैं. ये फ्लोराइड आयंस हैं. एटॉमिक नंबर 9 है, न्यूक्लियर नंबर 19 है, प्रोटॉन 9 है, न्यूट्रॉन्स 10 है. इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास क्योंकि फ्लोराइड आयन कह रहा है इसलिए 10 होंगे. ठीक है. मैग्नीशियम आयन कह रहा है तो इसका मतलब इसमें 12 प्रोटॉन्स होंगे और 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो y is 12. The right answer is C. That's a very simple question. Question number 9. A covalent compound P has the empirical formula CH2O. Which structure represents P? बेटा यहाँ पर आपके पास
HCOOH है, मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता हूँ, भाई यही एम्पेरिकल है और यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ये हो जाएगा H2CO2। ये गलत हो गया क्योंकि ये टैली नहीं हो रहा है इस एम्पेरिकल फॉर्मूला से। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C2H4O2। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर लूँ तो ये हो जाएगा CH2O। तो ये टैली हो गया एम्पेरिकल फॉर्मूला से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे जाने की जरूरत ही नहीं है अगर आंसर बी आ गया तो। क्वेश्चन नंबर 10, which statement about the structure or bonding of metal is correct? A metal lattice consists of negative ions in a sea of electron. That's absolutely wrong because metal lattice जो होता है वो positive ion with a sea of electron होता है। उसके बाद है electrons in a metal move randomly through the lattice. That's right because metals जो होते हैं उनके जो free mobile electrons होते हैं वो move करते हैं। Next, metals are malleable because the ions present are mobile. Malleability का ताल्लुक जो है वो layers of atoms slide over each other की वजह से होता है, आइंस की मोबिलिटी की वजह से नहीं होता, और आइंस मोबाइल भी नहीं होते। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं, आइंस फिक्स्ड होते हैं। ये बात मैंने आपको पढ़ाई, आपके रजिस्टर में लिखी हुई है, व्हिच इज व्हाई सी भी गलत। द आइंस इन अ मेटल मूव व्हेन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स आर अटैच्ड। मैंने कहा अभी आपको कि मेटल्स में जो पॉजिटिव आइंस होते हैं they are fixed, they cannot move, which is why D भी गलत है। Question 11, the relative atomic mass of chlorine is 35.5. What is the mass of 2 moles of chlorine gas? आपसे वो क्लोरीन गैस और 2 मोल्स का मास पूछ रहा है। तो भाई क्लोरीन गैस इज Cl2 जिसका मास 71 होता है। अगर 2 मोल्स हैं आपके पास तो बताइए मास कितना हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा। ये हमने वेरिएंस 11 में भी करवाया था आपके पास। When gases react, the volume of gaseous reactant may be different from the volume of gaseous product. ठीक है, वो आपसे कह रहे हैं for which reaction is the percentage change in the volume of gas largest. Okay, आप नोट करें यहाँ पर 3 मोल्स हैं और यहाँ पर 2 मोल्स हैं, तकरीबन 10% चेंज आ रहा है यहाँ पर, सही ना, वॉल्यूम का। यहाँ पर 3 मोल्स हैं और यहाँ पर भी 3 मोल्स हैं, तो यहाँ पर तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स सेम हो गए, तो 0% चेंज है, इसलिए गलत हो गया। यहाँ पर 4 मोल्स हैं और यहाँ पर 2 मोल्स हैं, यहाँ पर तकरीबन 50% चेंज आ रहा है वॉल्यूम का, राइट। हाफ मोल्स हो गए ना, तो 50% चेंज आ गया। यहाँ 9 मोल्स हैं और यहाँ पर 10 मोल्स हैं, तो यहाँ पर तकरीबन आपके पास अप्रोक्सीमेटली 10% चेंज आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा चेंज जो है ग्रेटेस्ट किस में आ रहा है? सी में आ रहा है 50%, which is why C is going to be the right answer. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, सोडियम कार्बोनेट reacts with dilute hydrochloric acid. A sample containing 0.08 moles of sodium carbonate is added to a solution containing 0.1 mole of hydrochloric acid. Which volume of carbon dioxide is produced measuring at room temperature and pressure? अब प्रॉब्लम ये है कि मुझे एसिड की भी मोल्स गिवन है और सोडियम कार्बोनेट की भी मोल्स गिवन है, और मैं ये भी जानता हूँ कि ये 1 मोल है अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, ये 2 मोल है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात इसका ये होगी कि मैं ये डिटरमिन करूं कि इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, क्योंकि जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसके मोल्स के थ्रू मैं मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालूंगा, और मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने के बाद मैं वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी डिटरमिन करूँ। ठीक है, तो अब जरा नोट कीजिए आप, ये 1 मोल है आपके पास, ये 2 मोल है आपके पास। अगर आपने 0.08 मोल्स लिया है तो बताइए ये कितना होगा? ये हो जाएगा 0.16 मोल्स, राइट। तो HCl यहाँ पर आपके पास कितना आ रहा है? 0.16, और यहाँ कितना आ रहा है? 0.1 मोल। इसका मतलब HCl लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। ठीक है, और इसकी वजह ये है कि अगर मैं 0.1 मोल को 2 से डिवाइड करूं तो मेरे पास 0.05 मोल्स आ जाएंगे सोडियम कार्बोनेट के। तो आप नोट करें ये लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया, तो इसकी कैलकुलेशन के थ्रू हम सारा काम करें। ठीक है,
तो अगर पॉइंट वॉल्यूम कैलकुलेट करना है मैंने, तो मैं मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा 24 dm³ से। तो मैं 0.05 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 24 से, तो ये हो जाएगा मेरे पास 1.2 dm³। अब 1.2 dm³ कहाँ पर लिखा है? बी में, तो बी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है। Question number 14, which statement about the electrolysis of a solution is correct? We said electrolysis of solution, और मैंने पढ़ाते हुए कहा था कि when we talk about solutions, इसका मतलब aqueous medium, और जब aqueous medium होता है तो उसमें हाइड्रोजन आयन भी होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन भी होते हैं, राइट? आगे पढ़ते हैं। During the electrolysis of concentrated aqueous sodium chloride, उन्होंने कहा concentrated aqueous sodium chloride, तो इसका मतलब जहाँ सोडियम आयन हाइड्रोक्साइड आयन होंगे वहाँ सोडियम आयंस भी होंगे, क्लोराइड आयंस भी होंगे, H+OH- के साथ। आगे पढ़ते हैं। वो कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड एट कैथोड। बिल्कुल सही बात है, ये लाइन ऑफ डिस्चार्ज से करीब होता है, तो हाइड्रोजन आयन विल मूव फर्स्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस, सो दिस माइट बी द करेक्ट ऑप्शन। This seems to be the correct option. Let's talk about the other options as well. During the electrolysis of dilute sulfuric acid, oxygen is produced at cathode. Absolutely wrong. Oxygen gas is given off at anode. ये गलत हो गया। When aqueous copper to sulfate is electrolyzed, the reaction taking place at cathode is, ये जो इक्वेशन है कैथोड पे लिखी हुई, इसमें कॉपर आयंस गलत है क्योंकि उसका चार्ज 2+ होना चाहिए, एग्जामिनर ने +1 दिया है, which is why ये भी wrong. When aqueous copper to sulfate is electrolyzed using copper electrode, the mass of anode at the end of the reaction will be greater than at the beginning. आप जानते हैं at anode oxidation takes place if anode is made up of copper and copper is oxidized. Obviously, mass of anode decreases with time, तो इंक्रीज तो नहीं हो सकता, और ये बात भी हमने आपको पढ़ाई हुई है, इसका स्केच भी आपके रजिस्टर के अंदर अवेलेबल। तो राइट आंसर इज ए। The apparatus shown is set up to plate a steel key with copper. The key does not get coated with copper. Okay. Which change needs to be made to the plate the key? आप जाहिर सी बात है, जब ऑब्जेक्ट है it has to be at anode, जबकि आपने उसको कहाँ रखा हुआ है? कैथोड। जो इलेक्ट्रोड है आपका it has to be at anode, उसको आपने कहाँ रखा हुआ है? at कैथोड। तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं इनको स्वैप करना पड़ेगा, इनको स्विच करना पड़ेगा, इनको रिवर्स करना पड़ेगा, and therefore D is going to be the right answer. फिर वो कह रहे हैं the equation shows the reaction of glucose with oxygen. By the way, ये जो रिएक्शन है इसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है, and respiration is basically the reverse of photosynthesis. तो रेस्पिरेशन आप जानते हैं कंबशन का प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक होगा। ये गलत हो जाएगा। इट नीड्स क्लोरोफिल। रेस्पिरेशन में क्लोरोफिल नहीं होता, फोटोसिंथेसिस में चाहिए होता है। इट अकर्स इन प्लांट्स बट नॉट इन एनिमल्स। रेस्पिरेशन प्लांट्स एनिमल्स दोनों में होता है, ये भी गलत। तो राइट आंसर इज ए, बिकॉज रेस्पिरेशन डार्क में भी होता है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ लाइट में होता है। Question 17, the energy profile diagram of a chemical reaction is shown. ठीक है, which statement is correct? The reaction is exothermic. Absolutely wrong, because energy of product is greater than that of reactant. इसका मतलब this reaction is endothermic, right? X represents the activation energy for the reaction. बिल्कुल सही बात है। एंडोथर्मिक रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है फॉर रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स होती है, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी X को रिप्रेजेंट कर रही है। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद वो कह रहे हैं y represents delta H for the reaction. ये y जो है ये तो ना एक्टिवेशन एनर्जी है ना ये डेल्टा H है, ठीक है, ये भी गलत। Z represents the energy given out. गिवन आउट तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है रिएक्टेंट की एनर्जी से, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, तो एनर्जी गिवन आउट नहीं हो सकती, इसका मतलब ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 18, द इक्वेशन शोज द रिएक्शन फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया, व्हिच चेंज विल डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन। बेटा सिर्फ एक ही ऐसा फैक्टर है जो कि एक्टिवेशन एनर्जी को ड्रॉप कर देता है, और वो है
कैटलिस्ट को यूज करना। तो एडिशन ऑफ कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेटिव पाथ फॉर द रिएक्शन। ऑलराइट, सो 18 का आंसर इज गोइंग टू बी एन ए। Question number 19. The apparatus shows a method of following the rate of reaction between magnesium carbonate and dilute nitric acid. Okay. The graph shows the volume of gas collected against time. Okay. 3 statements are made about the experiment. Okay. The mass of flask and its content decreases as time increases. बिल्कुल सही बात है. We have done this experiment and rate of reaction, including diagram. You can see that. तो जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे, तो जाहिर बात है रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, जिसकी वजह से जो मास ऑफ कंटेंट प्लस फ्लास्क है वो डिक्रीज होगा विद टाइम। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। सेकंड, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीजेस एज टाइम इंक्रीजेस। यह बात भी बिल्कुल ठीक है। आप नोट करें, यहाँ पर ग्रेडियंट ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, यहाँ पर ग्रेडियंट कम, रेट ऑफ रिएक्शन कम, और यहाँ पर ग्रेडियंट बहुत ही कम, रेट ऑफ रिएक्शन सबसे कम। तो बिल्कुल सही बात है। तो आप इसके लिए लिख लीजिए एस gradient decreases, rate of reaction decreases because gradient is basically the rate of reaction. ठीक है? The reaction has finished after 4 minutes. आप नोट करें, after 4 minutes. After 4 minutes, लाइन जो है ना वो कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट लाइन, तो इसका मतलब ये भी ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। 20 एक्वस ब्रोमीन इज एड टू एक्वस सोडियम क्लोराइड। आप जानते हैं ओके, ब्रोमीन की रिएक्टिविटी क्लोरीन से कम होती है। इसका मतलब वो क्लोराइड आयन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हो सकता। फिर भी पढ़ लेते हैं। ब्रोमीन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड क्लोराइड आयंस आर रिड्यूस्ड। ये रॉन्ग हो गया। ब्रोमीन इज रिड्यूस्ड एंड क्लोराइड आयंस आर ऑक्सीडाइज्ड, ये भी रॉन्ग, क्योंकि रिएक्शन तो हो ही नहीं रहा। Sodium ions are oxidized, wrong. Right answer is C, because neither oxidation nor reduction takes place as reaction cannot occur. All right, because bromine is less reactive than chlorine. So अगर आप इसको रिएक्शन करवाओगे सोडियम क्लोराइड के साथ, reaction won't occur. 21. Which statement is correct for all reversible reactions? All reversible reactions have reached dynamic equilibrium. Introduction of a catalyst changes the position of equilibrium. Absolutely incorrect. क्योंकि कैटलिस्ट जो होता है वो सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाता है, उसका पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से कोई ताल्लुक नहीं। The number of moles of products equals the number of moles of reactants. जरूरी नहीं होता। डायनामिक इक्विलिब्रियम के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड होना चाहिए, कंसंट्रेशन हैज टू बी कांस्टेंट होनी चाहिए। तो ये भी इनकरेक्ट है। सही है। The rate of forward reaction equals to rate of reverse reaction. That's right. Question 22. Which statement about acid and bases is correct? 0.1 mole per dm solution of ethanoic acid has a higher pH than 0.1 mole per dm solution of hydrochloric acid. आप नोट करें, ये वीक एसिड है, so it has higher pH. ये बात तो ठीक हो गई। आप नोट करें, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ऑब्वियसली इसकी pH लोअर होगी। ये बात भी करेक्ट होगी। तो A is going to be the right answer. आगे पढ़ लेते हैं। All bases dissolved in water to produce hydroxide ions. Wrong, क्योंकि कुछ बेसिस जो हैं वो insoluble होते हैं, like aluminum oxide. Right? Bases reacts with nitrates to produce ammonia. Wrong. Bases
reacts with ammonium ions to give ammonia. नाइट्रेट थोड़ी करता है, नाइट्रेट के लिए तो हमें एल्यूमिनियम फॉइल चाहिए होता है, ये गलत हो गया। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर ऑलवेज एसिडिक इन नेचर, वो भाई ऑक्साइड ऑफ मेटल जो होते हैं वो एम्फोटेरिक भी होते हैं, इसलिए ये भी गलत है। फॉर इंस्टेंस जिंक ऑक्साइड है, फॉर इंस्टेंस एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, फॉर इंस्टेंस लेड ऑक्साइड है, ठीक है, ये सारे के सारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एसिडिक हो। बेसिक ऑक्साइड्स भी होते हैं, एम्फोटेरिक भी होते हैं, एसिडिक नहीं होते। 23, which compound can be formed by precipitation? प्रेसिपिटेशन के लिए क्या होगा? आप जानते हैं प्रेसिपिटेशन में हमेशा इनसॉल्युबल सॉल्ट इज फॉर्म। विद दिस मेथड सही बेटा, ये गलत क्योंकि सॉल्युबल, ये गलत क्योंकि सॉल्युबल, ये भी गलत क्योंकि सॉल्युबल, दैट इज द राइट आंसर क्योंकि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट है। Which method could be used to make a pure sample of copper to sulfate? Pure sample of copper to sulfate. तो ऑब्वियसली बेटा थर्ड रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है हाइड्रोजन से, इसलिए एसिड से रिएक्शन नहीं करेगा। क्योंकि कॉपर सल्फेट सॉल्युबल सॉल्ट है, इसलिए मैं प्रेसिपिटेशन का मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एसिड और मेटल कार्बोनेट को रिएक्शन करवाऊं मिसाल के तौर पे इस तरह से, and we have done this equation in salt preparation का topic, ये स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा। फिर कॉपर ऑक्साइड और H2SO4, हमने ये इक्वेशन भी आपके साथ शेयर की है, इसके थ्रू भी कॉपर सल्फेट बनेगा, वाटर बनेगा, ये स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा। तो 1 and 2 and that A is the right answer। 25, ammonia is made by a reversible reaction. A chemist investigates how the percentage of ammonia at equilibrium changes with pressure. The experiment is carried out both at 250 and 350 degrees Celsius, which graph shows the chemist's results. Since the reaction is exothermic, तो अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, अमोनिया की यील्ड कम हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, लोअर टेम्परेचर यूज करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन में तो इक्विलिब्रियम फेवर्स टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, यील्ड ऑफ अमोनिया इंक्रीजेस। तो लोअर टेम्परेचर के ऊपर यील्ड ऑफ अमोनिया यहां ज्यादा आ रही है, बस यही ज्यादा आ रही है, यहाँ भी कम हो रही है तो ये भी गलत, यहाँ कम हो रही है ये भी गलत, और हाई टेम्परेचर के ऊपर ये भी गलत। तो बेटा हम यहाँ लिख देते हैं at low temperature and high pressure, equilibrium favors towards right hand side, thus percentage of ammonia at equilibrium increases, and therefore B is going to be the right answer। क्योंकि देखें लो टेम्परेचर के ऊपर यील्ड ऑफ अमोनिया ज्यादा है और हाई प्रेशर के ऊपर भी यील्ड ऑफ अमोनिया जो है वो ज्यादा है, क्योंकि दोनों केसेस में फॉरवर्ड चला जाएगा ये। Which statement about sulfur dioxide is correct? It is dissolved in water to make sulfuric acid। नहीं भाई, सल्फर ट्राइऑक्साइड से सल्फ्यूरिक एसिड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड से नहीं बनता, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फ्यूरस एसिड बनता है, तो रॉन्ग हो गया। Gives sulfurous acid, ठीक है। फिर बी देखिए, it is the final product of the contact process। No, final product तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। It is used as a food preservative, yeah, that's right, because it is a reducing agent, वो फूड को ऑक्सीडाइज होने से रोकता है।
And since sulfur dioxide is a reducing agent, potassium iodide is also a reducing agent. दो reducing agent आपस में reaction नहीं कर सकते, which is why D is also incorrect. 27. The diagram shows the part of the periodic table which two letters represent elements that can react together to form a covalent compound. यार देखें, covalent compound की ये खास बात है. When non-metals combine together, then covalent compound is formed. अब दो नॉन मेटल्स कौन से हैं? दो नॉन मेटल्स में आपके पास एक Y है और एक C है. ये दोनों मिलकर कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे, तो राइट आंसर इज डी. 28. Which statement about some of the elements of the periodic table is correct? The element germanium in group 4, that's right, has less metallic character than gallium in group 3. बिल्कुल सही बात है. गैलियम जो है वो मेटल होता है, जबकि जर्मेनियम जो है वो मेटलॉइड होता है, तो इसका मेटालिक कैरेक्टर कम होगा ऑब्वियसली. बिल्कुल सही बात है. So A could be the right answer, but let's talk about the other options. Element in group 5 forms ion with a charge of +5. Wrong. जो group 5 के elements होते हैं उनके valence में 5 electrons होते हैं. Octet complete करने के लिए they will gain 3 electrons, so they will carry -3 charge instead of +5. So it's absolutely wrong. Elements in the same group react in a similar way because they all contain same number of electrons. They all contain same number of electrons. नहीं जी, wrong है. इसलिए क्योंकि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम सेम ग्रुप के हैं. इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो एक ही ग्रुप के डिफरेंट एलिमेंट्स मैंने लिए और सबके एटॉमिक नंबर डिफरेंट होने से सबके इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट हैं, इसलिए सी रॉन्ग होगा. हाँ, ये अगर एग्जामिनर लिखता ना, बिकॉज दे ऑल कंटेन सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फिर ये आंसर हो जाता है, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सबके सेम होंगे. ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर गिवन दिस नेम एज दे इजीली चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड. नहीं यार, ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम ट्रांजिशन एलिमेंट सॉलिड टू लिक्विड में कन्वर्ट होने की वजह से नहीं दिया गया. तो बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो राइट आंसर इज ऑब्वियसली ए. बाकी सारे इनकरेक्ट हो. These statements are about the halogens. All halogens are non-metallic diatomic molecules. That's absolutely right. Chlorine displaces both bromine and iodine from aqueous solution of their salt. That's absolutely correct because chlorine की reactivity bromine और iodine दोनों से ज़्यादा होती है. फिर वो कह रहे हैं the halogen becomes more reactive on descending group 7 of the periodic table. Absolutely incorrect. Because chlorine की reactivity ज़्यादा होती है, iodine की reactivity कम होती है. इसका मतलब on descending group 7 reactivity decreases. The third statement is incorrect, and therefore Bravo is the right answer. Question 30. Which two statements indicate that metal N may have a proton number between 21 and 30? यार, ये स्कैंडियम होता है और भाई ये जिंक होता है और ये दोनों के दोनों ट्रांजिशन एलिमेंट हैं. वो कह रहे हैं इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी. एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, क्योंकि इन दो एटॉमिक नंबर से ये नहीं पता चल रहा कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी या वो ट्रांजिशन एलिमेंट है. बिकॉज ग्रुप 1 ग्रुप 2 के मेटल्स भी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेते हैं ना. एल्यूमिनियम भी तो ग्रुप 3 का एलिमेंट है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है. तो ये प्रॉपर्टी जो है ना, इस बात को शो नहीं कर रही कि वो 21 और 30 वाले एलिमेंट्स. It does not react with water. They do react, but very slow. ठीक है, ये भी गलत हो गया.
इट फॉर्म्स टू बेसिक ऑक्साइड विद फॉर्मूला, ये सही है बिल्कुल, क्योंकि अगर आप FeO बनाते हैं, ये दो ऑक्साइड बना लेंगे ना, स्कैंडियम ऑक्साइड और स्कैंडियम, बिल्कुल सही बात है, ये दो ऑक्साइड बना सकते हैं ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, बिकॉज ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। सही है, इट फॉर्म्स टू कलर्ड सल्फेट्स, दैट्स एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज तमाम के तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो 3 सही है, 4 सही है, एंड देयरफॉर डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है। 31, the table give properties of 4 metals P, Q, R and S। ठीक है, P के लिए एक्सट्रैक्शन ओनली इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू आ रहा है, तो इसका मतलब ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा, और मोस्ट रिएक्टिव मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन हो जाता है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गई। Heating oxide with carbon reacts slowly with steam, reacts with acid, acid के साथ रिएक्शन फास्ट होता है, ये भी गलत हो गया। R जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस ओनली, और फिर उसके साथ वो कह रहा है स्टीम के साथ रिएक्शन रैपिड है, और एसिड के साथ रिएक्ट्स रैपिडली, तो एसिड के साथ तो स्लो रिएक्शन होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। हीटिंग ऑक्साइड विद कार्बन, ठीक है, रिएक्शन विद वाटर नहीं हो रहा, तो इसका मतलब हाइड्रोजन से कम रिएक्टिविटी है उसकी, एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन से कम रिएक्टिविटी है, तो हाइड्रोजन से कम, तो यहां से जजमेंट ये की लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। कौन सा मेटल है जो हाइड्रोजन से कम होता है? कॉपर होता है, तो इसका मतलब एस जो है वो कॉपर है, तो राइट आंसर इज डी। 32, which statement about extracting metals from their ores are correct? Aluminum is extracted by the electrolysis of aluminum oxide dissolved in cryolite, that's absolutely right. Silver is difficult to extract from its ore because it has low reactivity, again it is incorrect. It has nothing to do with the reactivity, actually उसका जो ore होता है वो ऑक्साइड बनाता है, जो कि फर्दर ऑक्साइड बनाता है एक्चुअली। ठीक है, iron is extracted from hematite by reduction in the blast furnace, that's absolutely right. तो 1 और 3 करेक्ट हैं, राइट आंसर इज बी। याद रखिएगा, सिल्वर जो है उसको जब हम उसके ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो सिल्वर मेटल की वजह सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है। Which statement about the corrosion of iron are correct? Corrosion can be prevented by coating the iron with zinc, ये I believe correct हो सकता है because galvanization कहते हैं। It is also called sacrificial protection, ये ठीक है बिल्कुल। Corrosion only occurs in the presence of both air and water, बिल्कुल सही बात है। That's also called rusting. Rust is an alloy of iron and oxygen, by alloy नहीं होता rust, ठीक है। Sacrificial protection occurs when iron is connected to a less reactive metal. If it is attached to the less reactive metal, iron खुद oxidize हो जाएगा less reactive metal के बजाय। तो third and fourth statement भी correct. Right answer is A, क्योंकि first और second statement ठीक है। Question 34. In the extraction of aluminum from aluminum oxide, the following 3 reactions takes place. बेटा ये रिडक्शन होती है एट कैथोड, ये ऑक्सीडेशन होती है एट एनोड, और ये भी ऑक्सीडेशन होती है एट एनोड। सो बेटा ये दोनों के दोनों रिएक्शन होते हैं एट एनोड, और एनोड जो होता है वो बेसिकली आपका क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो कह रहे हैं which reaction takes place at positive electrode? So 2 and 3, the right answer is going to be D.
क्योंकि ये एनोड पे ये कैथोड पे होता है, और कैथोड जो होता है वो आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, which statement are correct? Chlorination is used to remove unpleasant taste from drinking water. Wrong. वो चारकोल ऐड करते हैं, कार्बन ऐड करते हैं अनप्लेजेंट टेस्ट को रिमूव करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। Desalination can be achieved using distillation. बिल्कुल सही बात है, डिस्टिलेशन के थ्रू हम सॉल्ट को रिमूव कर लेते हैं, प्योर लिक्विड को रिमूव कर लेते हैं, फिर सॉल्ट डिस्टिलेशन प्लांट्स में रह जाता है। दैट्स राइट। द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट इन वाटर एंड सॉइल एनकरेजेस प्लांट ग्रोथ। बिल्कुल सही बात है, ब्यूटिफिकेशन इसी तरह से होती है। The second and third is the right answer. C is going to be the correct option. 36 two isomers are shown. ये है ब्यूटेन और ये है 2-methyl propane. Which statement about these isomers are correct? They have the same empirical formula. जाहिर सी बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है। इसका फॉर्मूला है C4H10 और इसका फॉर्मूला भी है C4H10। तो जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो empirical फॉर्मूला भी सेम होगा। सेकंड स्टेटमेंट गलत, दे हैव डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत बिकॉज़ दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम होमोलॉगस सीरीज। दैट्स आल्सो राइट बिकॉज़ ये भी एल्केन है और ये भी एल्केन है बिकॉज़ ऑल कार्बन एटम्स आर सैचुरेटेड। So 1 and 3 are correct. So Bravo is going to be the correct option. Question 37. A hydrocarbon compound Q has a molecular formula C6Hy. एक compound Q है जिसका formula C6Hy है। ये जो Q है हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, फॉर्म कर रहा है सिंगल प्रोडक्ट विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस। यार एक बात तो तय होगी कि भाई ये आपके पास क्या है, एल्कीन, क्योंकि ये हाइड्रोजन से रिएक्शन करके एल्कीन बना रहा है। ये जनरल फॉर्मूला किसका हो जाएगा, एल्केन का। Which statement about Q is correct? Q does not burn in air. भाई एल्केन हो या एल्कीन, वो एयर में बर्न होकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्रोड्यूस करते हैं। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो गया। Q is saturated हाइड्रोकार्बन। जब Q एल्कीन है तो वो सैचुरेटेड तो नहीं हुआ, तो बी भी गलत। Q reacts with bromine to form a single product with molecular formula this. अच्छा, अगर Q एक एल्कीन है और आप एक एल्कीन को ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहे हैं, मिसाल के तौर पे ये है आपके पास एल्कीन, मिसाल के तौर पे देखिएगा जरा, आप इसको ब्रोमीन से रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपके पास फॉर्मूले में कितनी ब्रोमीन ऐड होंगी, 2 ब्रोमीन ऐड होंगी, है ना। तो 2 ब्रोमीन है आपके पास में, जबकि यहाँ कितनी ब्रोमीन है, सिर्फ 1 ब्रोमीन है। तो ये भी गलत, 2 ब्रोमीन ऐड होती है, आपने 1 कर दिया। तो राइट आंसर इज गोइंग टू बी डी, क्योंकि जब एल्कीन को स्टीम से रिएक्शन करवाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल बनता है, जिसका जनरल फॉर्मूला ये है। इस जनरल फॉर्मूले को हम और किस तरह से लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो हमने इस तरह से लिख के दिया था आपको, CN H2N + 1 डॉट OH, है ना। Which structural formula represents an alcohol? आप जानते हैं, मैंने आपको अल्कोहल में आइसोमेरिज्म सुनाया है, समझाया है, पढ़ाया है काफी डिटेल से, वो आपके फिंगर टिप्स पर होना चाहिए फॉर दिस क्वेश्चन। तो ए जो है वो अल्कोहल नहीं है क्योंकि उसमें OH फंक्शनल ग्रुप नहीं है, नो OH ग्रुप। ठीक है, ये भी गलत, नो OH ग्रुप। तो ये भी गलत क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। राइट आंसर इज बी बिकॉज इट हैज एन OH group. 39. Which statement about carboxylic acid is correct? They are prepared by the oxidation of alkane. Incorrect. Alcohol की oxidation से prepare होते हैं। ये decolorized aqueous bromine, ये saturated होते हैं, तो जाहिर सी बात है गलत हो जाएगा।
They react with alcohol to form ester. Absolutely right. Carboxylic acid and alcohol react together to give esters. They react with carbonates to form salt, water, and carbon dioxide. क्योंकि उसने हाइड्रोजन बोला इसलिए ये भी गलत. P is a polymer that has 6 carbon atoms in each of the monomer. यानी जो भी मोनोमर हम इस्तेमाल करेंगे पॉलीमर P के लिए उसमें टोटल 6 कार्बन एटम होने चाहिए दोनों मोनोमर्स के अंदर. Is not a polyester. इसका मतलब it is not sterile. सही है जी. Forming condensation polymerization. Okay. अब देखें ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये टोटल कितनी हो गई 6 कार्बन एटम. दूसरा जो मोनोमर है उसमें आपके पास टोटल कार्बन एटम्स कितनी है 6. तो इधर भी टोटल 6 कार्बन एटम्स हैं इस मोनोमर में और इस मोनोमर में भी 6 कार्बन एटम है. वो यही तो कह रहा है कि ईच मोनोमर हैज 6 कार्बन एटम. तो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. लेकिन हम बाकी भी देख लेते हैं. यहाँ देखिए यहाँ टोटल आपके पास कितनी कार्बन एटम्स बन रही है 8 कार्बन बन रही है इस मोनोमर में. ठीक है. जबकि इस मोनोमर में कितनी कार्बन एटम्स बन रही है 6. राइट. तो इसलिए ये गलत हो जाएगा. दोनों में 6 होनी चाहिए. सिमिलरली यहाँ देखिए. ओ वेट. सिमिलरली यहाँ देखिए यहाँ टोटल 6 कार्बन एटम है और यहाँ भी 6 कार्बन एटम है. तो 6 कार्बन और ये भी क्या है 6 कार्बन. ये एब्सोल्युटली रॉन्ग बिकॉज ये तो एडिशन पॉलीमर है. एग्जामिनर ने कहा इट इज अ कंडेंसेशन पॉलीमर. फिर एग्जामिनर ने कहा कि वो एस्टर नहीं हो सकता. तो ये भी गलत बिकॉज इट इज एन एस्टर. The right answer is C. क्योंकि उसमें 6 कार्बन है. All right. Thank you very much, guys. Good luck for the paper.